اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، و اولہ و آخرہ، اور میرے اگلے اور پچھلے، و علانیتہ و سرہ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے، آمین ثم آمین۔ اتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا، رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں، ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر، اپنی آزادی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے، اور یہی صبر ہے، دیٹ از اے لائف بیسیکلی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی، تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ماں باپ تو اب پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، مائیں بھی کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے، اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے، یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے، تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا، اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا، تو اس لیے گلہ کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا۔ اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر کتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، دعا سکھائی ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی ہوں سجدے میں جا جا کے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے بچانا اس ارذل العمر سے۔ اور ایک بخاری میں آتی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من بخلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بخل سے، والکسلی اور سستی سے، وارذل العمر اور ارذل العمر سے، وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا۔ اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہوم میں نہ جایا کریں، کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں۔ یہ ٹاپک یہ آیا ہی اتنی بڑھیا آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے، 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ
जो माँ बाप का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि उनके आगे उफ ना करो, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी माँ बाप की तुमने बात करनी, इनकी खिदमत बात सुननी है, इनकी खिदमत करनी है, इनके आगे बोलना नहीं है। तो अगर माँ बाप ऐसी बात आपको कहते हैं ना जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है, तो ऑफ कोर्स वो सारे, अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इनकार कर सकते हैं। यूजुअली पता है लोग ब्लैकमेल इसलिए भी करते हैं कि नहीं मैं ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, अगर अल्लाह की कोई ऐसी बात वो करते हैं कि उनको ही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, तो तब आप मना कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपने इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको ये कह रही थी ना कि ओल्ड फोक्स होम में कभी कभी जाया करें, आप देखा करें, अपने आप को रख के कि मैं क्यों जा रही हूँ, ताकि मैं देखूं कि अगर मुझे ये उम्र मिलती है तो फिर क्या, मतलब क्या चॉइसेस है मेरे पास। मुझे मेरे जब ससुर बीमार थे, हाँ, वो तो एक जमाना ऐसा आया था वो खा नहीं सकते थे, तो फिर उनको वो जो नाली से एक लगाते थे ना खाने की पेट में, तो वहां से खाना डालते हैं। अल्लाह अकबर, वो भी इतना तकलीफ दे चीज होती है। क्योंकि देखें एक और जानने वाले थे ना, उनके साथ जब हुआ, वो थोड़ी बड़ी, मतलब छोटी उम्र की थी, बड़ी से मतलब मेरे से बड़ी थी, लेकिन छोटी उम्र इसलिए आसे कि वो अभी अर्ज़लिल उम्र में नहीं थी। वो फॉर सम रीजन उनको वो जब नाली लगानी पड़ी ना खाने के लिए, तो वो ये कहती थी कि काश ये एक चीज कहती है, वो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया जिंदगी में कि ये टेस्ट बड जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये कितनी बड़ी नेमत है कि खाना तो हम खाते हैं, हमारी बॉडी की जरूरत है, लेकिन उन टेस्ट बड का शुक्र मैं कैसे अदा करूं कि आयशा मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या चीज होती है। ये तो बस डंप कर देते हैं ना खाना इसी तरह से। तो कितनी चीजें हम सीख सकते हैं कि आज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते ना, कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हो जो शुक्र गुजारो, तो किस किस नेमत का अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी शुक्र अदा करें। ये तो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, सिर्फ अर्ज़लिल उमर का। तो अब देखिए कि अर्ज़लिल उमर में मैंने जब उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि उनकी जब ज्यादा तबीयत खराब थी, तो वहां पे डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सिस भी होती हैं, तो ये बहुत अच्छा इंतजाम है, तो तुम लोग जाग के मिलते रहो, रात भी रुक सकते हो। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से ये बात की, तो उन्होंने मुझे कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हम घर में नर्स रख लेंगे। लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने बहुत कहा कि तुम जाके देखो तो सही ना, क्योंकि उसके फैमिली में से कोई थे जो वहां पे थे। आप बिलीव करें, जब मैं उधर गई ना अपनी तरफ से, तो मैं बड़े शौक से गई कि अच्छा, उसने मुझे एक्सप्लेन भी ये किया था कि जैसे 5 स्टार होटल होता है, ऐसे तो जगह तो बहुत प्यारी बनी हुई थी। लेकिन जब मैं अंदर गई ना, ऑनेस्टली मेरे आज भी मेरी आंखों के सामने वो नक्शा, ऐसे लगता था कि मैं किसी पागल खाने में आ गई हूँ। जो बूढ़े थे, क्योंकि उनके कोई लव वंस उनके पास नहीं थे, तो वो जो बैठे हुए थे हर एज के डिफरेंट, किसी ने सर यूं फेंका हुआ है और वो यूं करके बैठे हुए हैं, और जो होती है ना एक वहशत, सैडनेस उनकी शक्लों के ऊपर, बाल भी ऐसे बिखरे हुए। वो आई नर्सें, उन्होंने जल्दी जल्दी उनको ठीक कर रही है, बाल बना रही है। तो वो कोई बोल रहा है अंदर से, वो अपनी मर्जी से जा रही है, नहीं जा रही है, क्या, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि क्या वहां पे मैंने देखा। और जिनको मैं मिली जाके, 1-2 लोगों को मैंने जस्ट टू नो कि क्या है, तो वो बस दे आर वेटिंग कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों मुझे जिंदा रखा हुआ है, क्यों मैं जिंदा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे ऊपर दुआ करो कि मेरा वक्त आ जाए। ये हाल हो जाता है। ये मेरी और आपकी स्टोरी है। अगर हमें वो उम्र मिलती है कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, और ये क्यों हो रहा है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अर्ज़लिल उमर पे लेके जा रहे हैं ना, वो खुद बता रहे हैं ना। देखें तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लिकई ला यालमा बादा इल्मिन शैया, ताकि ला यालम, ताकि वो ना जाने कि उसका जो इल्म था ना, वो सार शैया नकरा है, कुछ भी बाकी नहीं रहता।
मैं ऑनेस्टली जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, ये बात कई दफा जब मैं ये भी लेक्चर तैयार कर रही थी आपके लिए, तो मैं उससे पहले ना एक दिन अपने बच्चों से ये कह रही थी कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो इतनी दिन रात, मेरी तो जिंदगी यही है कि अच्छा ये सीखना है, ये सीखना है, ग्रामर में ये रह गया है, तरकीब में ये रह गया है, ये, और उसको याद करना पड़ता है ना, दिमाग लगा के मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा मजा आ रहा होता है। लेकिन मैंने कहा अच्छा भाई जब मर जाऊंगी तो ये सारा इल्म मेरा साथ ही चला जाएगा। ऑफ कोर्स उसका सवाब है, मैं उस सेंस में नहीं बात कर रही थी, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि देखो इतने बड़े बड़े आलिम दीन और इतने इल्म वाले लोग सब चले जाते इस दुनिया से। वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इल्म जो है वो एक्चुअली तो अल्लाह की जात के साथ है ना, जिसका इल्म उसका तो वो कहते हैं ना कोई सवाल और जवाब भी कोई नहीं है। इंसान कितना भी बड़ा वो इल्म उसके पास आ जाए, अगर उसको जिंदगी भी मिल जाएगी ना तो तब भी इल्म चला जाएगा आखिर में। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारा कुछ दिखाते हैं इंसान को कि तेरी हकीकत क्या है, तो कुछ भी नहीं है बेसिकली। और यही जवानी के जो दिन होते हैं ना, इसी में परफॉर्मेंस है बेसिकली, कि आप किस तरह से करते हैं, कैसे नहीं करते। अल्लाह के पूरी जिंदगी आप सोचें सिर्फ यही है कि अल्लाह के अहकामात के अंदर आपने खुशियां मनानी है, आपने जॉब करनी है, आपने घर संवारने हैं, आपने पार्टीज करनी है, आपने कुछ भी करना है, ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता है, लेकिन उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर करना है। बस इतनी सी बात है। अगर जिस चीज को ये समझ आ जाती है ना, ऑनेस्टली उनकी जिंदगियां बन जाती हैं। क्योंकि देखिए जिंदगियों में गम एंड फिक्र एंड परेशानियां तो आनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आयशा को तो कोई परेशानी नहीं है तो फातिमा को कोई परेशानी नहीं तो अरूबा को कोई परेशानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसकी जिंदगी में कुरान खुल जाता है ना, उसके लिए उसको डील करना आसान हो जाता है। कुरान बिल्कुल एक जैसे मजबूत दीवार होती है ना बंदे की, इस तरह से उसके पीछे वो गिरता भी है ना तो वो उसके सहारे गिरता है, उस पे जाके गिरता है और वो थाम लेता है इंसान को। अल्लाह सुब्हानहू तआला मखरज निकालते हैं, बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इतनी दफा बताया कि जो लोग अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह का तकवा करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए मखरज निकाल देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा सच्चा ना हो। सिर्फ ये है कि कुरान जिंदगी में खुलना चाहिए। देखिए हम अच्छी बातें, अगर कुरान नहीं खुला ना, बहुत से लोग आपने आगे देखेंगे वो कहेंगे जी हमें पता है अब और कितना पढ़ना है हमने, या फिर उनको ये है कि हम तो कुरान रोज पढ़ते हैं। अब वो एक और टॉपिक है कि वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो जैसे भी है, लेकिन जब तक उनको कुरान की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बच्चे की तरह हाथ हमारे पकड़ पकड़ के बताते हैं कि लोगों यहाँ से नहीं इधर से गुजरो, इधर से नहीं इधर से गुजरो, ऐसे चलो, ऐसे रहना है। वो उनको कौन बताएगा? और अगर देखिए उनका दीन वही होगा, वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि जो लोगों में देखते हैं कोई अच्छी बात सीख लेंगे, कोई गलत बात सीख लेंगे, उनके अंदर डर भी नहीं होगा उस बात का जो वो अगर कोई गलत बात करें। तो दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरी जिंदगी में, मतलब हमारी जिंदगी में, हमारी औलाद की जिंदगी में, तमाम लोगों की जिंदगी, मुसलमानों की जिंदगी में या अल्लाह, और तमाम लोगों की जिंदगी में कुरान खुल जाए। ये जो बार बार ये बात कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं कुरान लाया अमल है। आज मैं इतना जब बोल रही हूँ ना, ऑनेस्टली मैं अपने आप को माइंड से ना स्टॉप कर रही हूँ कि अब अगली आयत पे आ जाऊं, ताकि मैं और क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि आपका टेस्ट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के आई थिंक पांच आयत का है जो आ जाना है। अच्छा, लाइव आपका जो टेस्ट हो रहा होता है ना लाइव क्लास के बाद का, तो उसके साथ आज मैंने एक नंबर भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप उसको ज्वाइन कर लें और आपके टेस्ट के जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ वो टेस्ट करके उसका जो नंबर है ना वो अपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपकी टीचर इंशाल्लाह वहां पे आपको गाइड करती रहेंगी, ठीक है। तो आपने टेस्ट जरूर देना है। जब आप टेस्ट देते हैं ना तो आपके लिए आसानी होती है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है कि अच्छा हाँ इस आया में ये पढ़ा था, ये इसके बारे में ये है, तो टेस्ट देना नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं मेरा ख्याल अब यहाँ तक रखती हूँ। इंशाल्लाह जहाँ पे फिर आएगा तो इसके बारे में और बात करेंगे। तो आया नंबर 71 में
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह फद्दला बादुकुम इला बादिन फिर रिज़्क़, कि अल्लाह ने फजीलत दी बाज को बाज पर, किसमें? रिस्क पर। अब यहाँ पे रिस्क जो है ना उसको समझना भी जरूरी है। नंबर वन, आप फॉर एग्जांपल ये सोच लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रिस्क में जो हमारे माल है, पैसे हैं, ठीक है, जॉब है हमारी, हमारा बिजनेस है, अगर हम उससे भी देखते हैं क्योंकि वो भी इसी में ही आता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने खुद फजीलत दी है, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है लोगों को, और उसका भी क्या मकसद है? अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला लेके भी आजमाते हैं, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश ही है। इधर से आजमाइश से बच जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे, उधर से बचेंगे उधर फंस जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने फजीलत दी है। अब रिस्क जो है ना, देखें वो हर तरह का, आप देखें हमारी हदायत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता की है वो भी रिस्क है, नेमत। अगर आप आसान उसको रिस्क को लेंगे ना, अभी हमने क्या दुआ पढ़ी थी, मैंने शुरू में आपके सामने जो दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी तफक्कुर व तदब्बुर लिमा यतलुहु लिसानी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जो मेरी जुबान पढ़ती है इस कुरान से, या अल्लाह मुझे फहम अता करना, मुझे यतलू लिसानी मिन किताब, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी तफक्कुर व तदब्बुर, तफक्कुर तदब्बुर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अता करना। तो ये हर तरह का रिस्क इसके अंदर आ जाता है। और वो जो दूसरी वाली दुआ है ना, उसमें भी ये आता है वर्जुकनी तिलावतहु आना अल-लैल, कि अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं रात को व आना अन्नहार, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं दिन के पूरे वक्त में और रात के वक्त में बस कुरान की तिलावत ही करती रहूं, मैं उसको पढ़ती रहूं, मैं उससे मोहब्बत इतनी मुझे उससे हो जाए। तो वहां पे भी रिस्क का लफ्ज आता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह का, देखिए किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, हर तरह में, किसी को पैसे ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास कोई, किसी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पसंदीदा लोगों में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू। तो इसी तरह से देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ने फजीलत दी बास को बास पर। क्यों दी? आगे देखिए कि एग्जाम्पल क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, फमल्लज़ीना फुद्दिलू, और वो लोग जिनको जो फजीलत दिए गए, बरादी लौटाने वाले नहीं, और नहीं वो फमल्लज़ीना, और नहीं है वो लोग जिनको अल्लाह ने फजीलत दी कि वो लौटाए रिस्क हिम, अपने रिस्क कौन सी, जितनी भी जो भी नेमतें अब आप या सोच लेना दी है अल्लाह ने, अला मा मलकत ईमानुहुम, उन लोगों को जो उनके, इसको आसानी से मलकत ईमानुहुम, गुलामों को अगर कहोगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, जो उनके अंडर काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले जमाने में तो गुलाम होते थे ना, तो अब इसको नौकरानी की तरह तो आप या नौकर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुलाम का एक और लेवल होता था। लेकिन चलो आसानी के साथ समझने से यहाँ पे अगर आप वो भी ले लेते हैं ना, तो आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आ जाएगी। फहुम, तो वो फी ही सवाउन, तो वो उसमें यकसा बराबर हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ने नेमत दी तुम्हारे पास, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी फजीलत दी है, पैसों की बात ही से एग्जाम्पल ले लें, तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 कनाल का घर है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास जो काम करने वाली है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और तो काम वाली के 7 बच्चे हैं, तो तुमने कभी ऐसा सोचा कि इसके तो इतने, इसको ज्यादा जरूरत है, चलो 1 कनाल मैं इसको कहती हूँ कि ये वाला आधा 1 कनाल जो है वो तुम ले ले, आधा भी नहीं देते, पौना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे कहना क्या है कि आफा बिनिमतिही, अब तो क्या फिर अल्लाह की आफा बिनिमतिहिल्लाही, तो क्या फिर अल्लाह की नेमतों में यजहदून, कि तुम इनकार करते हो, तो क्या तुम अल्लाह की नेमतों में शरीक बनाते हो? खुद तो तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, जो उसने दिया है और उसने कहा है कि खर्च करना है, फिर भी तुम करते हुए तुम्हारा दिल घबरा जाता है, तुम नहीं करते हो, और तुम नहीं करते हो, और उसके बावजूद जो अल्लाह के साथ तुम शरीक बनाते हो, जो अल्लाह के काम है उसके अंदर तुम किसी और को ले आते हो। कैसे?
देखिए जैसे वो बुतों के पास जाते थे ना, तो बुत का जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या करते थे, ऐसे इतने बेवकूफ नहीं थे कि मट्टी के बुत के आगे बैठ जाएंगे। वो वसीला बनाते थे अपने नेक लोगों का, उनकी छवि बना के रखते थे कि हमें ये पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई एक नेक बंदा था, किसी का भी आप नाम सोच ले जो वो सोच रहे थे, उन्होंने तो नाम रखे हुए थे। तो इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो ये जो लोग है ना, ये अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे जॉब नहीं है, तो मैं इस बुत के पास जाऊंगी तो मेरी जॉब पे लग जाएगी। वो इनकी देवियां होती है ना, जो पैसे देने वाली देवी एक और होती है, तो बच्चा पैदा, हमारे भी अब देख ले, अगर औलाद पैदा नहीं हो तो फला मजार पे जाओ तो ये धागा बांधोगे तो वहां से बच्चा पैदा हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतनी चादरें चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला एक एक आया में आप देखें खोल खोल के बयान करते हैं कि किस तरह से तुम लोग अल्लाह के साथ क्यों शिर्क बनात करते हो, क्योंकि शिर्क से तो बड़ी कोई और चीज है नहीं है ना, कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मना किया हो कि उसके बाद तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं रहते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम तो फिर तो वो जहन्नम वाला हिसाब हो जाता है ना। तो अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे ही नफ्सों में से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब ये आया भी ऐसी है ऑनेस्टली कि पूरा वो कहते हैं ना, पूरा दिन भी इस पे बोलता रहे बंदा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें, बीवियां तो औरतें ही होती है ना, कि क्यों बनाया था आदम अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हेडिंग भी इसलिए इस क्लास के लिए रखी थी कि बीवियां अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे रहमत, बरकतें, इनाम पैदा किए हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में अकेले थे, राइट। तो वहां पे वो जब उदास हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हवा को उनकी पसली से पैदा किया, जो हमारे पास जितना भी इल्म आता है उसके मुताबिक, कि आदम से हवा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में फरमाया लितस्कुनु अलैहा, ताकि हा की ज़मीर जो होती है ना, ये औरत की तरफ जाती है। अब बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, इसे मियाँ बीवी का, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, लेकिन अगर आप ग्रामर के असूल से देखें ना, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने औरत के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला, अब औरत खुद से कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक और बात है, वो अच्छी बीवी बन रही है नहीं बन रही, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात की कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस औरत के अंदर सुकून रख दिया। उस औरत को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर मर्द को कवाम बनाया, राइट। लेकिन उस औरत से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ऑनेस्टली इनामात पे इनामात, कि जब सुकून भी इस औरत में है, फिर वो तुम्हें औलाद भी देती है, फिर वो तुम्हें पोते भी आगे से तुम्हें इसी में से मिलते हैं, यही औरत तुम्हें अता करती है। और ये सारी आदमी के लिए कितनी खुशी की बात होती है, उसकी नस्ल आगे चल रही है, तो वो बीवी ही तुम्हें अता कर सकती है। और फिर वो उस बीवी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि जो औरत जो है वो अपनी